کہ جس سے باپ راضی اس سے رب راضی. تو میں پوری کوشش کرتے رہتا ہوں کہ میں میرے والد تو باتیں کروں. جب وہ حیات تھے تبھی میں ان کو پونا میں ملنے آیا کرتا تھا. جب وہ پردہ کر گئے تبھی میں نے وہ سلسلہ بند نہیں کیا. ہر سیٹرڈے سنڈے میں آتا ہوں, ملتا ہوں اور ان سے باتیں کرتا ہوں. یہ اپنے آپ میں, اور یہ میرا چاہت ہے, میرا لگاؤ ہے, اور مجھے یقین ہے وہ میری بات سنتے اور اس کا جواب یہاں ملتا ہے. اور الحمدللہ یہ حاجی عرفات پورے ہندوستان بھر کے اندر ان کی دعاؤں کے بدولت ہی آج پورے ہندوستان کے اندر یہ حاجی عرفات جو کچھ ہے ان کی دعاؤں کے بدولت. یہ فخر ہے کہ میں حضرت سلامتی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا میں بیٹا ہوں. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ مسجد محمد اللہ کے بارے میں بھی ہم ضرور رمضان کے بعد بہت سارے چیزوں کے خلاصے کریں گے. اور ہندوستان کے عالم دین, ہر مسلک کے عالم دین سے بات کی جا رہی ہے, ہمارے سارے بڑوں سے بات کی جا رہی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو شرعی نقطۂ نظر کی بات جب کرتے تو مسجد کا معاملہ جب آتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اہم فیصلے لیے جائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو وہ فیصلے کے بعد اور ہندوستان حاجی عرفات شیخ کی دعاؤں سے نوازے گا. جب آل انڈیا صوفی بورڈ نے پہلی مانگ کی عبدالستار صاحب سے, تورنت بات کی اور 10 کروڑ روپے کا فنڈ سینکشن ہو گیا اور ممبئی شہر کے اندر ہمارا صوفی بھون بن رہا ہے. یہ ادبھت بات ہو گئی. میں سرکار پیر عادل بیجا پوری کی گود میں کھیل کود کے بڑا ہوا کہ جب عمر کے کچھ سمجھ ہی نہیں تھی, 4-5 سال کی عمر کے اندر ان کے ساتھ مجھے بیان سننے کا, تعلیمات حاصل کرنے کا موقع ملا. میرے پیرو مرشد علی شاہ قادری مکمل پیر کے ساتھ بیٹھ کے تعلیمات لینے کا موقع ملا. شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت اور علم عرفان کا راز سمجھنے کا موقع ملا. اسے کئی نکات جب وہ باتیں کرتے تھے, رات بھر جب جاگتے تھے, اس وقت پہ کہیں نہ کہیں چیزیں میرے کان تک آتی تھی. السلام علیکم معزز ناظرین, اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت سلامتی پیر آفیشیل یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج اینڈ ایکس پریویسلی نون ایز ٹویٹر. اس وقت آج ہم لوگ موجود ہیں پونے میں دیہو روڈ شریف, جہاں پر بہت ہی دھوم دھام سے منایا گیا سرکار سلامتی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک جو 12واں تھا. الحمدللہ بہت مزہ آیا, بہت جشن, بہت جوش و خروش عوام میں دکھائی دیا. تمام خلفۂ سلاسل, تمام پیر و مرشدین اور تمام محبین و عاشقین کی موجودگی نے اور چار چاند لگا دیے. اور الحمدللہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ بذات خود سجادہ نشین حضور سرکار سلامتی پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی جناب حاجی عرفات شیخ صاحب موجود ہیں. ان سے تاثرات لیں گے کہ کیسا یہ عرس پلان ہوا, اور ہر سال کی طرح ماشاءاللہ ہر سال جو ایک کچھ نیا دیکھنے ملتا ہے, اس سال بھی ماشاءاللہ 12ویں عرس مبارک میں کیسا یہ طے ہو پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت صوفی سلامتی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا آج اس سال 12واں عرس منایا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں 16واں روزہ ہر کوئی پورے مہاراشٹر بھر سے ان کے چاہنے والے دیش ودیش سے بھی آج بڑے پیمانے کے اوپر لوگ ادھر پہ آئے اور روزہ افطار ہوا, دعائیں ہوئی, اجتماعی دعا ہوئی, نعت پڑھی گئی. یہ اپنے آپ میں خاص بات ہے. اور یہ بزرگان دین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جس کو چاہے اس کو بلا لیتے, کیسا بلانا ان کا کام ہے. اور ہم ان کے خادم بن کر کام کرتے ہیں. میں 11 سال 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دن کچھ نہ کچھ عروج کا معاملہ ہی آتا ہے. ہر ٹائم اضافہ ہوتا ہے, لوگوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز ادھر ہم دیکھنے کے لیے ہم نے دیکھی. سال میں 3 بار عروج کا پلان کیا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں, سندل پیش کیا جاتا ہے. پہلے حضرت میرے پیر مرشد مکمل پیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پونی شریف میں آرام فرما رہے, تو میرے پیر مکمل پیر اس کو پورا انجام دیا کرتے تھے. اس کے اندر ان کا ہی پوری نگرانی کے اندر سارے عرس منائے گئے. اس کے بعد ان کا پردہ ہونے کے بعد سرکار پیر عادل رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے قدیر بھائی جان, ان کے نگرانی کے اندر سارے پروگرام اس کے ان کے بعد پورا انہوں نے ہاتھ میں لیا, اور انہوں نے ایک بڑا بھائی بن کر اس چیز کو ساتھ دیتے ہوئے کہ میں ایک سلسلے سے جڑا ہوں, لیکن پولیٹکس کے اندر زیادہ مصروفیات ہونے کی وجہ سے سلسلے کے قاعدے قانون اور ایک خلفاؤں کے قاعدے قانون جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں قدیر بھائی جان یعنی لاسانی پیر صاحب آتے, خود بیجاپور سے آتے, ایک دن پہلے آتے
प्रोग्राम के 8 दिन पहले वो आके पूरा मुआयना करते हैं, किस तरीके से होगा, बैनर किस तरीके से बनेगा, कौन किस तरीके से होगा, कौन किधर बैठेगा, किस वक्त पे क्या चीज़ होगी, संदल कितने बजे पेश होगा, फिर परचम कुशाई कितने बजे होगी, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिटेलिंग के ऊपर वो ध्यान देकर बिल्कुल मेरे पीर और मुर्शिद यूनुस अली शाह कादरी मखमली पीर के बाद उन्होंने एक बड़ा भाई बोलकर एक सिलसिले के एक बड़े हमारे आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला है, तो आज हमारे सारे पीरों के अंदर एक बड़े के अहदे के ऊपर आज वही फैज़ है और वो पूरा सब देख रेख करते। इस साल उन्होंने कहा कि घर से संदल पेश किया जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मैं समझा कि घर से पेश करेंगे, गर्मी का वक्त है, किस तरीके से होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, घर से ही होना चाहिए, संदल घर में बनाया जाएगा, सभी दुआएं होगी, सिजरा खानी पड़ी जाएगी और उसके बाद घर से निकलेगा। और जब मैं वाकई में जब घर से नहीं तो मैं आधे रास्ते में उनसे कहा भी कि वाकई में आपने जो कहा वो बहुत बेहतर था कि जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर शोर था, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, संदल को चूमने की कोशिश कर रहे थे, सलाम पेश कर रहे थे, ये अपने आप में की बात है कि एक दरगाह का किस तरीके से डंका बजना चाहिए, सूफीज़म का डंका बजना चाहिए, पीरी तरीक़त का डंका बजना चाहिए, ये उसका एक मकसद रहता है। वो आज जो देखने में मिला, इंशाअल्लाह ताला हर साल बहुत अच्छे तरीके से तक़वे परहेज़गारी के साथ में शरई नुक्ते नज़र को देखते, हर चीज़ को बारीकी से देखते हुए हर एक इधर पे एक कब्रिस्तान भी है, फिर मस्जिद भी है, ईदगाह भी है, उस सारी चीज़ों को देखते हुए हर साल हम उर्स मनाते हैं। इस साल भी हमने मनाया। पूरे देहरोड शहर के काफ़ी बड़े ज़िम्मेदार, हर जाति धर्म का यहाँ पे लोग मौजूद था। इफ्तारी हमने साथ में की। यहाँ पे सीनियर पुलिस और जैन समाज, सिख समाज, बौद्ध समाज, हर समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे थे। हर पॉलिटिक्स में अगर तुम देखें तो हर पार्टी के लोग यहाँ पे थे। कोई भी पार्टी वाला मामला यहाँ नहीं नज़र आया कि एक चाहत वाला मामला लगा है। जो सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह को जो चाहते मानते वो हर कोई हर साल आते। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे फ़ख्र है कि मैं हज़रत सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का मैं बेटा हूँ। आज मुझे खुशी होती है कि आज मेरे वालिद ने जो रात दिन जो मेहनत की और जो सूफीज़म को बढ़ाया, जो कलमे की दावत दी, और आज ये सारी चीज़ें उनके बदौलत ही हाजी आराफ़ा शेख को मिलता है। पूरी जहाँ कहीं पे भी दुनिया में जब जाता हूँ तो हर कोई अदब से, रिस्पेक्ट से सलाम करता है, मिलने आता है। ये उनकी बदौलत है। तो मैं आई लव माई फादर, मैं मेरे फादर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, हर बच्चों को कहूँ कि अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप को खूब देखो, उनकी पेशानी को देखो, ताकि कुछ सीखने मिले, इबरत हासिल करने मिले। हम कभी भी चुकेंगे नहीं अगर हमने हमारे माँ बाप की तरबियत पे चले, और हमारे ख़ास तौर पर बाप की, जिससे बाप राज़ी उससे रब राज़ी। तो मैं पूरी कोशिश करते रहता हूँ कि मैं मेरे वालिद को बातें करूँ। जब वो हयात थे तभी मैं उनको पूना में मिलने आया करता था। जब वो पर्दा कर गए तभी मैंने वो सिलसिला बंद नहीं किया। हर सैटरडे संडे में आता हूँ, मिलता हूँ और उनसे बातें करता हूँ। ये अपने आप में, और ये मेरा चाहत है, मेरा लगाव है, और मुझे यकीन है वो मेरी बात सुनते और उसका जवाब यहाँ मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजी आराफ़ात पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर उनकी दुआओं के बदौलत ही आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये हाजी आराफ़ात जो कुछ है उनकी दुआओं के बदौलत है। अच्छा हाजी साहब, एक बहुत अच्छी चीज़ आज देखने मिली, बहुत रूह परवर चीज़ आज देखने मिली माशाल्लाह। वैसे आपको अल्लाह पाक ने तमाम कई मनसब पर फाइज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इज़्ज़त से नवाजा है, बहुत मोहब्बतों से नवाजा है। आज एक नई तंजीम की हमने बुनियाद डाली है, डाली तो बहुत पहले है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को उस पर मुकर्रर किया गया, पद पे फाइज किया गया। ऑल इंडिया सूफ़ी बोर्ड पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह, जिसके आप सदर हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी दें। देखिए कैसा है कि मैं सरकार पीर आदिल मिर्ज़ापुरी के गोद में खेल कूद के बड़ा हुआ, कि जब उम्र के कुछ समझ ही नहीं थी, 4-5 साल की उम्र के अंदर उनके साथ मुझे बयान सुनने का, तालीमात हासिल करने का मौका मिला। मेरे पीर मुर्शिद यूनुस अली शाह कादरी मखमली पीर के साथ बैठ के तालीमात लेने का मौका मिला। शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत और इल्म इरफान का राज समझने का मौका मिला। ऐसे कई नुकात जब वो बातें करते थे, रात भर जब जागते थे, उस वक्त पे कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे कान तक आती थी। तो उस वक्त पे हर जब बात होती थी तो उनकी एक फ़िक्र होती थी कि एक सूफ़ी बोर्ड बने। ख़ास तौर पर हमारे मखमली पीर साहब की सोच थी कि हमारे मुरीदों के लिए, हमारे दरगाहों के लिए, हमारे जो मानने वाले, जानने वाले आते हैं, वो कुछ ऐसी परेशानी लेके आते कि जो पीर
कहीं जाके बात नहीं कर सकता है। पीर एक राजा होता है, तो पीर सरकारी दफ्तर में कैसा जाएगा। तो ये अपने आप में एक बात है। और हमारा जो जितनी तालीमातें खानकाहों तक के सीमित होती है, बाहर बहुत सारी चीज़ सूफीज़म की जो असली चीज़ें बताई नहीं जाती, सारे सिलसिले नूर है, हमारा सिलसिला नूरुल आला नूर है। हमारे सिलसिले में कई बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग है, कई वली है, मुफ्ती है, आलिम है, कारी है, ऐसे कई कलेक्टर और कई पढ़े लिखे लोगों ने भी यहाँ पर तालीमात हासिल की और उनको खिलाफतों से नवाजा गया। ये अपने आप में ख़ास बात थी। तो कई सालों से ही चल रहा था। तो कुछ दिनों के पहले मैंने कदीर भाईजान से जब बात की और बीजापुर में हमारी बहुत देर तक के इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा इतना बड़ा सिलसिला है, इतने सारे खलीफा है, इतने सारे मुरीद है, और सरकारी किस तरीके से योजना का लाभ इन तक मिले। सरकार में रहकर हम सरकार से कैसे बातें करें, कैसे हमारे परमिशंस के मामले, कब्रिस्तानों के मामले, ज़मीनों के मामले ऐसे कई जाके पेंडिंग हो जाते हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ये जब बहुत वक्त निकल जाता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खड़ी हो जाती है। तो हर जगह पे हमने जब बातें की थी, एम्बुलेंस की बातें की थी, हर जगह पे एम्बुलेंस। आज तो एक छोटी एम्बुलेंस हमने, लेकिन हम उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। हमारे हर स्टेट के अंदर एक एम्बुलेंस आएंगी और बड़ी एम्बुलेंस होगी। वो एम्बुलेंस जो होगी, जो हमारा जो एक खलीफा है, वो जब आखिरी सफ़र करेगा, घर से जब निकलेगा, जब उसकी जब आखिरी ठिकाने पे जब जाएगा, तो वो किसी सरकारी एम्बुलेंस में नहीं जाएगा, वो अपनी खुद की सिलसिले की एम्बुलेंस में जाएगा, जो ताज वाज पहनकर एक बड़ा एम्बुलेंस की साइज़ भी बड़ी होगी। वो सारी चीज़ हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसी चीज़ें जो हम बिल्कुल ईद के बाद जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम बताएंगे। इसीलिए आज ख़ास तौर पर हमने 14-15 डिक्लेरेशन की है। सभी खलीफाओं के सामने प्रोग्राम था, तो कदीर भाईजान ने कहा कि एक 14-15 जो नेशनल लेवल की जो पोस्ट है वो हम आज डिक्लेयर करेंगे। और पूरे इंडिया की जो सिलसिले की पोस्ट है, जो लोग काबिल है, जो काम करना चाहते हैं, जो लोगों की मदद आधी रात को भी जाके कर सकते हैं, पढ़े लिखे से कई खलीफा है, तो ऐसे लोगों को हम साथ में लेकर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर सरकार पीर आदिल का डंका बजाएंगे, सूफीज़म का डंका बजाएंगे, सरकार के नवाज का डंका बजाएंगे। और अल्लाह ने चाह तो और इसके अंदर कई इजाफा करें। जैसे हमने और जब ऑल इंडिया सूफी बोर्ड ने पहली मांग की अब्दुल सत्तार साहब से, तुरंत बात की और 10 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हो गया और मुंबई शहर के अंदर हमारा सूफी भवन बन रहा है। ये अद्भुत बात हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें जब होगी, सूफी भवन आएगा, जैसे अजमेर शरीफ में सूफी भवन आएगा, दिल्ली में सूफी भवन आएगा, मुंबई में सूफी भवन आएगा, बीजापुर में सूफी भवन आएगा, तो ये अपने आप में अयोध्या के अंदर सूफी भवन आएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी हमारा एक मरकज़ तैयार होगा और पूरा सिलसिला, और हर सिलसिले के लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ऐसा नहीं खाली हमारे सिलसिले के लोगों को मौका दिया जाएगा, हर सिलसिले के लोग हम ज्वाइन करेंगे, हर सिलसिले के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, सूफीज़म को एक बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी सूफीज़म में जो सिखाया जाता है पूरे देश विदेश तक के लेके जाने का काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। ये अपने आप में बात है। और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और पूरे हिंदुस्तान से ये सूफीज़म का सरकार पीर आदिल का जो डंका बजेगा, देश और विदेशों के अंदर भी हमारी हर जगह जगह इसकी शाखें होगी, खानका होगी। ये अपने आप में ख़ास बात होगी। और ये ज़रूर रमज़ान के बाद बहुत सारी चीज़ हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। और बहुत सारी पोस्ट, आज तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो आज रमज़ान के लिए हम कर नहीं सकते, लेकिन ईद के बाद वो सारी डिक्लेरेशन हम रंगशार हॉल में करने वाले हैं। अच्छा हाजी साहब, एक आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस वक्त जो पूरा देश जानने में है, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो पहले बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी अयोध्या उत्तर प्रदेश में, हाजी अरफात शेख साहब उस मुबारक मस्जिद के कार्य समिति अध्यक्ष यानी कि डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविश व अंतक मेहनतों ने अल्हम्दुलिल्लाह इनको वहाँ तक पहुँचाया है। और आप खुसूसी आप सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के पेजेस पे, चैनल पे और कहीं उनके जितने भी पोर्टल्स हैं, वहाँ पर ऑडियंस के इतने क्वेश्चंस होते हैं, इतने सवालात होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं हद तक जितना पता है उतना जवाब देते हैं। आज हम डायरेक्टली आपका जो है रूबरू करवा रहे हैं हाजी अरफात शेख साहब से, तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ताल्लुक़ से थोड़ी सी रोशनी अता फरमाएँ। नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में भी हम ज़रूर रमज़ान के बाद बहुत सारे चीज़ों के खुलासे करेंगे। वो हिंदुस्तान के आलिम दीन, हर मसलक के आलिम दीन से बात की जा रही है, हमारे सारे बड़ों से बात की जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शरई नुक्ते नज़र की बात जब करते हैं, तो मस्जिद का मामला जब आता है तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। और अल्लाह ने चाहा तो वो फ़ैसले के बाद
पूरा हिंदुस्तान हाजी अराफात शेख को दुआओं से नवाजेगा, कुछ अहम फैसले करेंगे। बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर जो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, वो सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। वेबसाइट के उद्घाटन हो जाएगा, अकाउंट्स की डिटेल हम दे देंगे। आज हिंदुस्तान में कोई भी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का अकाउंट कहाँ है ये बता नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने 10 करोड़ दे दिया, 20 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, 5000 करोड़ दिया, 10,000 करोड़ दिया, ऐसी बातें कहते। अल्लाह करे दे दे तो बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनके दिलों में डाल देगा और ये बातें सच हो जाएगी और मस्जिद का काम और बेहतर तरीके से होगा। लेकिन अब तक के हमने हमारा अकाउंट खोला नहीं है, बहुत सारे परमिशंस लेने बाकी है और उसके लिए हमने अप्लाई किया है सरकार के अंदर, और रमज़ान के बाद वो सारे हम परमिशंस लेकर ही हम सारे डिक्लेरेशन, अकाउंट्स के डिक्लेरेशन, वेबसाइट के डिक्लेरेशन, QR कोड के डिक्लेरेशन, हम अलग अलग तरीके से एक नात के ज़रिए लोगों तक जाएंगे। हर भाषा के अंदर हमारा QR कोड के जब बटन दबाएंगे उसमें कन्नड़ भाषा होने दो, हिंदी भाषा होने दो, मद्रासी भाषा होने दो, गुजराती होने दो, तमिल होने दो, हिंदी होने दो, मराठी होने दो, बिहारी होने दो, इंग्लिश होने दो, मराठी होने दो, अरबी होने दो, हर लैंग्वेज के अंदर हम बनाने जा रहे हैं। और बड़े बड़े अजीम हिंदुस्तान के नामवर लोगों की आवाज़ आपको सुनाई देगी और उसके ज़रिए हम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की चंदा वसूल करने जाएंगे। कोई चिट्ठी लेके रास्ते पे कहीं जाएगा और लोग डायरेक्ट मस्जिद में डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं, लेकिन आज तक के हमने ये सारी चीज़ें नहीं की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ अगर होगी तो और या किसी ने मांगा भी होगा तो ना दे। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला हाजी अराफात शेख सारे बातों का खुलासा करते हुए, डिक्लेरेशन करते हुए सारे आलम दीन के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने पूरी बात हम रखेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा सब्र कीजिए। हम जो मस्जिद बनाएंगे तो कहीं ना कहीं एक राय बराबर का, बाल बराबर का, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद जो था वो उस मामले से जुड़ा हुआ था। बाबरी मेरी मस्जिद नहीं है, मस्जिद मेरी है। मुझे बाबरी से प्यार नहीं, लेकिन मस्जिद से ज़रूर प्यार है। ये 100% मैं 100% इसका खुलासा ज़रूर करूँगा कि हम बाबर को नहीं मानते। बाबर एक राजा था, बाबर इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था। हम बाबर को मानने वाले नहीं, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, हम नबी को मानने वाले लोग हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए इंशाअल्लाह ताला ये मस्जिद से मुझे प्यार है, मस्जिद से हमारी आस्था है, और मस्जिद का मामला जब आएगा तो कोई भी एक डॉट बराबर के ऊपर उसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये उठाने हाजी अराफात शेख नहीं देगा। हर चीज़ के अंदर सारी चीज़ों को देखते हुए इंशाअल्लाह मस्जिद का काम हम उसकी बुनियाद रखने जाएंगे। अल्लाह ने चाह या इलेक्शन के बाद हाजी अराफात शेख आपको मुंबई शहर से लेकर अयोध्या तक के पैदल चलता हुआ नज़र आएगा, तकवे परहेजगारी के साथ में। एक किसी का अपना घर बनाने नहीं जा रहा हूँ, अल्लाह का घर बनाने जा रहा हूँ। और मुझे यकीन है अल्लाह ने चाह तो पूरे हिंदुस्तान के लोग उस मेरे साथ में उस वक्त मेरे साथ चलेंगे और पूरा हिंदुस्तान दुआओं से नवाजेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया हाजी साहब हमसे बात करने के लिए। और वैसे आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देव रोड शरीफ में, सरकार सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह मुक़द्दसे के अहाते में। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बाबरकत बारगाह है कि आप एक बार तशरीफ़ लाएँ, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला तब्दील हो जाएगी। हमें देखने सुनने के लिए, हाजी साहब से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल अगर तब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और अपनी दुआओं में बहुत खुसूसी तौर पे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।